Hello students, welcome back to Parabola. In this video, we are going to talk about the reflection property of parabola. Reflection property. अब अगर आप ग्लासेस यूज करते हैं तो स्फेरिकल ग्लासेस भी होते हैं, पैराबोलिक ग्लासेस भी होते हैं. There are so many kind of glasses. I don't know because I don't wear glasses. So the idea is कि whatever I know about this, I know by the help of parabola only. I don't know anything more about the glasses you wear. So the idea is कि एक focus है. Any light ray coming to the parabola parallel to the axis, after reflection, it passes through the focus. That is the reflection property of parabola. Or I can say कि any light ray coming from the focus after reflection becomes parallel to the axis of parabola. So अगर parallel to axis है तो reflect होने के बाद focus से pass करेगा और it seems like कि passing through focus. What does that mean? It means that अगर कोई लाइट रे यहां से आया, अब रिफ्लेक्ट होके अंदर तो आएगा नहीं, आउटर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा तो बाहर ही बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलेगा, बट ऐसा लगेगा कि इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस. It will look like that it is coming from the focus, but actually it will not. So that is the whole idea. This is called reflection property of parabola. But ये तो बहुत सिंपल सी बात हुई. इसमें अच्छी बात क्या है that I am going to tell you. ये एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं. Let's draw a tangent and a normal. We know that कि angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. तो ये हो गया angle of incidence, ये हो गया angle of reflection. मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे. These two angles will be same. And now I am going to draw a horizontal line from that same point P. वो same point P से एक horizontal line draw किया. Now what do you see कि this angle and this angle are actually same because ये दोनों horizontal line है. It means okay, सब गड़बड़ हो गया. फिर से बना रहा हूं, फिर से करते हैं. Hello students, welcome back to Parabola. In this video, we are going to talk about the reflection property of parabola. Reflection property of parabola का मतलब क्या होता है कि there is this parabola, any light ray incident to the parabola coming parallel to the axis of parabola after reflection goes to the focus. फोकस से पास होगा. उल्टा भी बोल सकते हैं कि फोकस से निकलती हुई कोई भी लाइट रे जब पैराबोला से रिफ्लेक्ट होगा तो वो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. और तो और ये इनसाइड नहीं आउटसाइड भी काम करता है कि एनी लाइट रे कमिंग टू द पैराबोला पैरेलल टू द एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus. ये थोड़ा ऑड सा नहीं लग रहा है कि आया बाहर से और उसके अंदर चला गया? It is not going to happen. So what will be happening? ये इधर जाने की जगह इसकी जगह इधर चला जाएगा. So actually यहां से आएगा तो बाहर निकल जाएगा. It will seem like that it is coming from the focus. Ultimately, you can say it is coming from the focus.
So that is an idea about the reflection property. So you can write reflection property of parabola. Any light ray coming is incident to the parabola parallel to the axis will pass through the focus after the reflection. Or second statement, any light ray from focus of the parabola after reflection become parallel to the axis of parabola. ये तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी हो गई, एक इंफॉर्मेशन है, यू कैन यूज इट, बट इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है विच आई एम गोइंग टू टेल यू. सो ये एक पैराबोला हुआ. दिस इज अ पॉइंट. इस पॉइंट से मैंने फोकस को ज्वाइन किया और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया डायरेक्ट्रिक्स पे या एक्सिस पे, जो भी आप बोले. वैसे तो डायरेक्ट्रिक्स पे होता है क्योंकि वी नो दैट पी एस इज इक्वल टू पी एम. पी एस इक्वल टू पी एम का कॉन्सेप्ट आपको याद है ना. द आइडिया इज कि लाइट रे अगर इधर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से पास होगा मत, और लाइट रे जो होता है वो सेम एंगल ड्रॉ करता है. लाइट रे ऑलवेज मेक्स सेम एंगल विद द बिफोर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो नॉर्मल के साथ वो दोनों सेम एंगल बनाते. सो आई कैन से कि टैंजेंट के साथ वो दोनों सेम एंगल बनाएंगे. नाउ लुक एट इट क्लोजली and you'll find that this angle and this angle are actually equal. ये वाला जो एंगल था, this angle and this angle are equal. So what we see that कि जो tangent है वो PS और PM को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. ध्यान से देखो, एक पिंक एंगल है और एक ब्लू है. दिस पिंक एंड ब्लू एंगल आर बेसिकली सेम. तो जो टैंजेंट है वो एंगुलर बाइसेक्टर हुआ. सो अगर टैंजेंट एंगुलर बाइसेक्टर है तो आई कैन से कि नॉर्मल भी एंगुलर बाइसेक्टर होगा. क्यों? 2 एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं ना, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो वन एंगुलर बाइसेक्टर इज टैंजेंट, तो सेकेंड एंगुलर बाइसेक्टर विल बी नॉर्मल. तो आई कैन से टैंजेंट एंड नॉर्मल एट P are angular bisectors. Tangent and normal at P are angular bisectors of PS and PM. ये बहुत अच्छा नोटेशन है, और कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी. PS एंड PM से बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है. सो आइडिया इज कि PS और PM का एंगुलर बाइसेक्टर होता है टैंजेंट एंड नॉर्मल. एक कंफ्यूजन कभी कभी होती है स्टूडेंट्स को कि भूल जाते हैं, सर टैंजेंट और नॉर्मल एंगुलर बाइसेक्टर थे या PS PM. तो आई आस्क देम कि एंगुलर बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, and they say 90. I say always, they say yes. तो then I ask you कि tangent और normal हमेशा perpendicular होते हैं या PS और PM? Yes, tangent and normal are always perpendicular. तो अगर tangent और normal हमेशा perpendicular हैं तो वही angular bisector हो सकते हैं. तो tangent and normal at P are angular bisectors of PS and PM. This is the application of that reflection property. इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं. बहुत सिंपल सा आइडिया है. एंगल निकालने का मतलब tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. टैंजेंट का स्लोप 1/t होता है, नॉर्मल का स्लोप -t होता है, और PS PM का स्लोप तो आपको आता ही है. सो दैट इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला विच रिजल्ट्स इन दिस वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट. और ये रिजल्ट डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ये दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है, और समथिंग लाइक दिस. Now, if I say this angle is theta, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, and this angle will be 90 minus theta, and this angle will also be 90 minus theta. That's it. So this was about the reflection property of parabola. Thank you.